Namaskar, my dear students. Welcome back to Goenka Maths Study, my lovely boys. बेटा आज 10th क्लास वाले भैयाओं के लिए चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये हमारा 12th चैप्टर है। इस चैप्टर को लेकर के हम प्रेजेंट हैं, जिसमें हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज 12.1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा जरा, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी कंप्लीट द चैप्टर 10 सर्कल एंड देयर सम operations of circles area related to circle, that is called in this chapter we learn about perimeter and area of circle, एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि ऑलरेडी अपन इस चीजों को पढ़ चुके होते हैं। बट यहाँ इस 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन क्या पढ़ेंगे, देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ओके, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। सर्कल की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है, दैट इज कॉल्ड circumference and perimeter. Okay, so the unit of measurement of the perimeter is the unit of length. Okay, my lovely boy, ठीक। We know from our earlier classes that the ratio of the circumference of a circle to its diameter is constant, and this constant is denoted by a Greek letter pi. यानी ratio between circumference and diameter, ratio between circumference and diameter is a constant. This constant is denoted by pi, and pi is a Greek letter. Okay, so circumference equals to pi into d, and diameter of the circle is called 2r. So the circumference of circle is 2 pi r, or in a circle circumference and perimeter both are equal. Okay, now we read about pi something. Okay, so the great mathematician Aryabhatta in 476 and 550 stated an approximate value of the pi, which is as 3.1416, but for practical purpose we usually take the value of pi as 22/7. Okay, now और यहाँ पर बेटा कुछ एग्जांपल्स को पढ़ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जब तक आपके एग्जांपल्स क्लियर नहीं है, तो समझ लीजिए एग्जांपल्स जो हम कर लेते हैं ना, ये हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल्स नहीं है, बुक के ये एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एज ए एग्जांपल। सो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टू सॉल्व ऑल दीज examples, okay, in your notebook before the exercise. Find the area of circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter. Very interesting question. In a square, square के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, a circle that can be inscribed in a square. Okay, and side of square is 6 centimeter, so the diameter of the circle is 6 centimeter. Okay, then the radius of the circle is 3 centimeter. Radius of the circle is 3 centimeter. So area of the circle equals to pi r square. Okay, and value of r is 3, then the 3 square is 9, and the 9 pi centimeter square. Clear?
Example number 2. Example number 2. If pi is taken as 22/7, pi की वैल्यू आपको क्या यूज करना है इस क्वेश्चन में 22/7, then find the distance in meters covered by a wheel of diameter 35 centimeter. Diameter of the wheel is 35 centimeter. Any wheel takes its circumference, total distance circumference in one round. यहाँ पर पूछ रहा है भाई डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रिवॉल्यूशन. कितने रिवॉल्यूशन में? वन रिवॉल्यूशन में. देखिए मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है और इसको आपने ऐसे करके राउंड ऑफ कर दिया, ऐसे करके आपने इसको घुमाया, तो वन राउंड में जैसे देखिए ये है ना, यहाँ से ये इसका मार्क हो गया हमारा भाई, कहाँ से कहाँ तक ये ऐसे करके घूम करके आया और ये व्हील एक राउंड चल करके अपने प्लेस पर आ गया, तो जितना इसकी आउटर की लेंथ है उतना ये चलेगा. सिंपल सा फॉर्मेट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू will have to find the circumference, and for the circumference you require radius. Diameter 35 centimeter equals to 0.35 meter, so radius is 0.35/2. Otherwise you can use the formula circum pi into d. Okay, value of pi is 22/7. 7 से इसको आप कट कर दोगे तो देखिए 0.05 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 0.05 में आप 22 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा भैया 1.1 मीटर. इतने मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है मैंने प्यारे बच्चों. The area of a circle is equal to the sum of the areas of two circles of diameter 10 cm and 24 cm. Then find the diameter of the larger circle. Find the diameter of the larger circle. Okay. So अब यहाँ पर देखिएगा आपको उस बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका एरिया उन दोनों छोटे छोटे सर्कल्स जिनके डायमीटर दिए हुए उनके एरियाज के इक्वल है. ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू d/2 का स्क्वायर. ये बड़े वाले की हमने रेडियस सपोज कर ली, छोटे छोटे वालों की इसका डायमीटर 10 तो 10/2 और ये 24/2. सॉल्व कर लेंगे, पाई को कॉमन लेकर के पाई से पाई कट हो जाएगा, सो d/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से ये 10 कट होकर के क्या हो जाएगा भैया 5, और 2 से ये 24 कट होकर के क्या बनेगा बच्चों 12. ओके, 12 and 5 square is 25 and 12 square is 144, so sum is 169 and 169 is the square of 13, so we can write it in the form of 13 square. स्क्वायर टू स्क्वायर स्क्वायर रूट लेने पर कट हो जाएगा, सो d/2 इक्वल्स टू 13 एंड d इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर. सो डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द आउटर एंड इनर डायमीटर, आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग. रिंग का एरिया बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देते हैं. अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, या फिर पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल R इज द आउटर रेडियस एंड स्मॉल r इज द इनर रेडियस. ठीक है, सो देखिए r 34 इज डायमीटर, सो 34/2 यानी 17 और 32/2 यानी 16. सो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर लेंगे 33 पाई. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर. आपने ज्योमेट्री बॉक्स में अपना प्रोटेक्टर देखा होगा, डी के शेप में होता है, सेमी सर्कुलर होता है, उसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस डी. अदरवाइज आप पाई आर प्लस 2r भी बोल सकते हो, क्योंकि d इक्वल टू होता है 2r की. इट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. ओके, पाई की वैल्यू ये दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको डायमीटर पूछा है. ठीक है ना,
तो पाई आर प्लस 2r, आर हमने कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे आप 22/7 और सॉल्व करने के बाद ये अपना आर की वैल्यू 7 आ जाएगा। सो डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ मेरे बच्चों। एन एथलीट runs on a circular path of radius 49 meter and covers a distance of 3080 meter along its boundary. टोटल उसकी बाउंड्री के along में डिस्टेंस जो कवर कर रहा है that is called circumference. How many rounds has he taken to cover the distance? इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना राउंड लगाना पड़ेगा? तो 1 राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सर्कमफेरेंस है। तो इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? तो सर्कमफेरेंस का डिवाइडेशन अपन कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्क, circumference of circular park equals to 2 pi r. Put the value of pi 22/7 and value of r is 49. So circumference is 308 and the total distance is 3080 upon 308 equals to 10 राउंड्स उसके कवर हो जाएंगे। चलिए बेटा, अब एक्सरसाइज 12.1 जो आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हालांकि इस एक्सरसाइज में कभी भी 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज 12.2 में से ही आता है। ठीक है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। सो आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी भैया? 22/7 आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर देखिए मैंने आपको पाई की वैल्यू यूज करने का एक तरीका और बताया था, है ना, 9th क्लास में जब हम आपको मेंसुरेशन करा रहे थे, किसी के ध्यान में हो तो, यदि कोई ऐसी वैल्यू आर या एच की जो 7 से कट रही है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करिए। अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज करिएगा। वैल्यू ऑफ पाई 3.14 यूज करिएगा। The radii of 2 circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equals to the sum of the circumference of the 2 circles. Okay बेटा, देखिए 2 circles की रेडियस दी हुई है। जिन लोगों की समझ में आ गया है वो सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। जिनकी समझ में नहीं आया अभी ये क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर समझ लें। देखिए 2 सर्कल हैं, ठीक है, और ऐसा मैंने एग्जांपल कराया था ना, वह एग्जांपल में क्या था? एरिया था। हालांकि यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही पढ़ेंगे, एरिया वाला। यहाँ पर सर्कमफेरेंस, ये देखिए ऐसे फिगर से समझ लीजिए, ये एक बड़ा सर्कल है, ये कोई बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है। जिसकी रेडियस मान लीजिए आप आर है, कैपिटल आर मान ली हमने इसकी रेडियस, और ये 2 छोटे छोटे सर्कल हैं। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस, इसका रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है भैया? 9। और इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है आपको 19। इसका जो रेडियस दिया है वो 19 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका 19 और इसका 9, तो दोनों की सरकमफेरेंस, इसकी सरकमफेरेंस और इसकी सरकमफेरेंस, दोनों का सम इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो आप सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो एक ही रहेगा क्योंकि शेप तो सर्कल ही है। ठीक है ना, तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल वाला r, ये हमने यहाँ पर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 पाई कॉमन ले लिया, सो 2 पाई से ये 2 पाई कट हो गया, r1 प्लस r2 इक्वल टू कैपिटल R। सो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई भैया? इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई हमारी? 28 आ गई। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था बिल्कुल ठीक उसकी तरह से होना है मेरे बच्चों।
The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having the area. वही सेम कंडीशन, देखिए एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल ये है, इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, अब एक बड़ा सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों छोटे छोटे सर्कल्स के एरिया के इक्वल है, तो इसकी रेडियस पूछिए। हमने सपोज कर लिया कि भाई इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वेयर इक्व टू पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर। ओके, पाई पाई कॉमन ले लिया, सो पाई से ये अपना पाई कट हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वेयर इक्व टू स्मॉल 8 स्क्वेयर प्लस स्मॉल 6 स्क्वेयर। क्लियर? सो कैपिटल आर इक्व टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली चीजें इस क्वेश्चन में बहुत है भैया, प्रैक्टिकली आपको सीखने के लिए इस क्वेश्चन में बहुत मिलेगा। इन फिगर depicts an arcade marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21. ये जो गोल्ड वाला है इसका डायमीटर 21 है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी भैया, R1 हो गई हमारी 10.5। तो गोल्ड का एरिया तो इजी गोइंग तरीके से आप निकाल लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच 5 स्कोरिंग, इसका एरिया निकल गया ना। क्लियर? चलिए अब देखिए ये जो विड्थ कह रहा है ना प्रत्येक पोर्शन की, ये वाली विड्थ 10.5 कह रहा है, कितनी कह रहा है, 10.5। और आप देखेंगे कि गोल्ड की जो रेडियस है वो यहाँ तक है 10.5। रेड वाला जो रीजन है वो केवल इतना है, ये जो रीजन है ये रेड रीजन है, ये वाला रीजन। तो आपको इस रेड वाले रीजन का एरिया निकालना है। अब रेड वाला रीजन सेंटर से लेकर के इस बाउंड्री तक तो है नहीं, गोल्ड की बाउंड्री से लेकर के और रेड की आउटर वाली बाउंड्री तक का एरिया। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से रेड तक की बाउंड्री का एरिया, उसमें से गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर देंगे। अगर उसमें से हम जो है गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर देते हैं तो इस रेड वाले पोर्शन का एरिया निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। और रेड वाले की रेडियस आप निकाल दीजिए, रेड वाले की रेडियस निकाल दीजिए भैया। तो रेड वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, हाँ जी, रेड वाले की रेडियस देखिए गोल्ड की यहाँ से यहाँ तक 10.5 और ये भी 10.5। तो देखिए यहाँ ये जो हमारा R2 है रेड रीजन की डायमीटर कितनी हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5 तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला जो रीजन है ये अपना रीजन कैसा है, ब्लू है। ये वाला रीजन कैसा है भैया, ये ब्लू रीजन है, ठीक है। देखिए इस वाले रीजन का एरिया, ये जो एरिया है ये ब्लू है। तो अब इस ब्लू वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ब्लू तक की रेडियस निकाल लीजिए, 10.5 जुड़ जाएगी। रेड तक की रेडियस कितनी थी, 21। तो इसमें आप 10.5 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 31.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये ब्लू वाला है रीजन है, तो ब्लू वाले तक की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी भैया, 31.5 हो जाएगी, 31.5। और ऐसे ही इस ब्लू तक के एरिया में से रेड तक के एरिया को माइनस कर देंगे तो केवल हमारा जो ब्लू वाला रीजन है इस ब्लू वाले रीजन की रेडियस निकल करके, सॉरी एरिया निकल करके आ जाएगा ब्लू वाले का, ठीक है भैया। ये हमारा ब्लू वाला है, ओके। अब चलिए
ब्लैक वाले का, तो ब्लैक वाले में भी फिर रेडियस 10.5 बढ़ जाएगी। ब्लू वाले तक की कितनी थी? 10.5 थी। ब्लू वाले की कितनी थी भैया? 10.5। तो सॉरी 31.5, इसमें आप 10.5 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। तो इसमें से आप क्या करेंगे कि ब्लू वाले तक के एरिया में से रेड तक के एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा क्या बच जाएगा? ये हमारा ब्लैक बच जाएगा। क्या बच जाएगा भैया? ये अपना ब्लैक बच जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये अपना ब्लैक हो जाएगा। देखिए ये वाला रीजन में कर देता हूँ, इस रीजन को, ये ब्लैक हो गया। अब आपको इस ब्लैक वाले का एरिया निकालना है। देखिए ये वाला, ठीक है, निकाल लेंगे ना। अब ब्लैक तक के एरिया में से अब फिर ये कौन बच गया हमारा? ये व्हाइट बच गया। ठीक है, तो ब्लैक तक की रेडियस निकाल करके उसमें से ब्लू वाले तक के एरिया को हम माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर, एक बार पढ़ लीजिए। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर है। और 10 मिनट्स में, कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में, ठीक है, और वो कितने रिवॉल्यूशन लेगा? डायमीटर दिया हुआ है इतना। क्या दिया है? डायमीटर। तो आप पहले स्पीड को मिनट पर सेकंड कर दीजिए या सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लीजिएगा। मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, वहां मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है? ये है तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है कि डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, टाइम मिनट में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। देखिए कैसे करना है, अभी मैं बता देता हूँ। किलोमीटर के मीटर बना लेंगे, आवर की मिनट बना देंगे। देखिए, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द व्हील इज 80 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर। 100 का डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर। जीरो है ना, 0.04 मीटर, 0.4 मीटर। ठीक है, चलिए इसको आगे हम यहाँ सुधार देते हैं। ये 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील 2 पाई आर, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। लेट व्हील मेक एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स। मान लिया हमने भी 10 मिनट में वो एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक एन रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कर लेगा? तो एन इंटू 1 रिवॉल्यूशन में उतनी कर रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने इसका सुधार कर दिया, 0.8 हो गया, वो 0.04 बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये 0.4 ही होगा।
ओके, ये देखिए तो 0.8 इंटू 22/7, स्पीड ऑफ द कार 66 किलोमीटर पर आवर। तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर के हमने मीटर कन्वर्ट कर दिए, तो 10 मिनट्स में आवर था ना, तो आवर के मिनट बना दिए, तो इतने मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, इतने मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो एन राउंड में इतनी डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस, ये दोनों की कंपेयरिंग करा देंगे, नंबर ऑफ राउंड्स हमारे आ जाएंगे 4375 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन माय लवली बॉयज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू ये क्वेश्चन बन जाता है, ऑलरेडी एमसीक्यू टर्म्स में है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो देखिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। सो देखिए पाई से पाई कट गया, आर से आर की एक पावर गई, सो आर इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है भैया, नमस्कार सभी भैया को, जय हिंद जय भारत, बहुत अच्छे।